Very good morning to all of you. This is Abhinasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to start our last topic of this chapter number 1 of your book, Politics in India Since Independence, and the name of your chapter is Challenges of Nation Building. And the last topic of this chapter is creation of new states. In our last class, we discussed about the reorganization of states and how 14 states and 6 union territories emerged in the year 1956. And it was a very huge task for our government at that time to redraw the boundaries of the internal India. So finally, in 1952, what happened? Like there was a movement called Vishal Andhra movement, and Koti Sriramalu started fasting, and after his death, what happened? Like Prime Minister announces Andhra Pradesh as a new state, and this formation of state was on the basis of language basis. And after Andhra Pradesh, many states come forward and they started their own movement for the creation of the state on the basis of the language. But what happened? Government made a commission called appointed a commission called State Reorganization Commission in the year 1953, and the State Reorganization Commission finally submitted its report in the year 1955, and finally in the year 1956, our government redraw the boundary with 14 states and 6 union territories. Okay, so which one was the first state to which state was the first state which formed? Sorry, which state after independence? Which states became the first one to form? So your answer is yes, Harshita. Ma'am, Andhra Pradesh. Yes, in the year 1953, Andhra Pradesh became the first state to formed in India after independence. Okay, and finally in 1956, 14 union territories and first 14 states and 6 union territories were their state. But in today's, if we look at the present day, we have 28 states and 8 union territories. So how these states emerged? ठीक है, ये 28 states और 6 union territories, 28 states और जो 8 union territories है, ये कैसे emerge होके आई? टाइम टू टाइम क्या differences आने लग गए? क्योंकि State Reorganization Commission के according तो only 14 states and 6 union territories था. So now just look at this map. 1956 का जो मैप था वो ये था, ठीक है, ये आपका मैप है, एंड दिस इज द प्रेजेंट डे मैप ऑफ इंडिया. देखो कितनी सारी बाउंड्रीज बन चुकी है, कितने सारी आपके स्टेट्स बन चुके हैं, कितने सारे यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. तो ऐसा कैसे हुआ? So the acceptance of the principle of linguistic states did not mean, however, that all states immediately became linguistic states. There was an experiment of bilingual Bombay state consisting of Gujarati and Marathi speaking people. After a popular agitation, the states of Maharashtra and Gujarat were created. Now what happened? People started demanding for the states on the basis of linguistic basis, ठीक है, on the linguistic basis. तो क्या हुआ था? ये देखो, ये वाला जो एरिया था ना आपका, ये वाला आप देखो, ये बॉम्बे का एरिया है, ठीक है. एंड जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बाइलिंगुअल बेसिस पे भी जो है स्टेट्स की उन्होंने क्रिएशन की थी, ठीक है. तो देखो, ये आपका बॉम्बे का एरिया था 1956 में, और ये बाइलिंगुअल था, गुजराती स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग दोनों ही पीपल जो थे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे. तो क्या हुआ था,
1960 में क्या हुआ था, एक पॉपुलर डिमांड आई थी, ठीक है, एक एंजाइटी क्रिएट होने लग गई थी लोगों के अंदर, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर ओन नेशन की लैंग्वेज के बेसिस पे एक नेशन होना चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ, 1960 में एक स्टेट फॉर्म क्रिएट होके आया, एंड दैट स्टेट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। बॉम्बे से आपका गुजरात की फॉर्मेशन हो गया है। आपका प्रेजेंट डे इंडिया का मैप देखो, ये गुजरात है, ये आपका फॉर्म हो गया है। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि 15th स्टेट कौन सा था जो फॉर्म हुआ था, तो 15th स्टेट वाज गुजरात फॉर्म हुआ था, ठीक है। बॉम्बे से निकला था महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो स्टेट्स ऐसे बन गए थे, बट हम 15th स्टेट बोलेंगे। गुजरात की फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, ठीक है। जो स्टेट्स डिमांड करने लग गई थी, तो फाइनली 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात की फॉर्मेशन हो गई थी। Now, another case, look at the another case. In Punjab also there were two linguistic groups, Hindi speaking or Punjabi speaking log the. The Punjabi speaking people demanded a separate state, but it was not granted with other states in 1956. Statehood for Punjab came 10 years later. In 1966, when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state. अब 1956 में क्या किया था, ये आपका पंजाब का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, आई हैव सेपरेट मैप फॉर पंजाब आल्सो। ये आपका पंजाब का एरिया है 1956 में, ठीक है। ये वाला एरिया जो है पंजाब का है। अब पंजाब में भी हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश पंजाबी स्पीकिंग दोनों ही लोग थे, और उन्होंने 1956 में डिमांड कर दी थी कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, हमें भी एक सेपरेट स्टेट ग्रांट कीजिए। बट गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इमीडिएटली ये स्टेट नहीं दिया था, ठीक है। ये 1966 में जो है गवर्नमेंट ने पंजाब, ये देखो, ये 1956 का पंजाब का मैप है, ठीक है। देखो, हिमाचल प्रदेश पहले टुकड़ों में था, पहले हिमाचल प्रदेश जो था एक स्टेट नहीं था, ठीक है। जो जितने भी हिली एरियाज थे उनको बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एज अ स्टेट उनको बोल दिया गया था, एज अ यूनियन टेरिटरी। तो ये 1956 पंजाब का एरिया है, बट फाइनली व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1966, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 1966 में। ये तीन स्टेट्स जो हैं फॉर्म्ड हुए थे। एक बड़ा सा स्टेट था पंजाब, उससे 3 स्टेट्स को क्रिएट किया गया था। बट यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, पंजाब और हरियाणा के बीच में था कि चंडीगढ़ जो है हम रखेंगे। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, क्या किया गया, पंजाब और हरियाणा दोनों को ही क्या है, जो कैपिटल बना दी गई थी, चंडीगढ़ को बना दी गई थी, और चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ना ही पंजाब को दिया गया, ना ही चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया। तो ये याद रखना, 1966 में क्या है, पंजाब का जो क्रिएशन है वो 3 स्टेट्स में हो चुका था, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ओके। और चंडीगढ़ जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ओके। सो इससे पहले 1966 से पहले भी एक क्रिएशन हुई थी, एंड वो क्रिएशन क्या थी क्लास, 1966 से पहले नागालैंड, जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, प्रेजेंट डे मैप ऑफ इंडिया, ये जो नागालैंड है ना, 1963 में इसकी क्रिएशन हो गई थी। तो ये है आपका 16th स्टेट। फर्स्ट स्टेट आप सबको पता है कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज 1956 में बने, एंड 1960 में आपका गुजरात जो था 15 स्टेट क्रिएट हुआ, एंड 1963 में नागालैंड की क्रिएशन हुई थी, ठीक है। बीच में ऐसे कुछ आ गया था, और जिससे क्या है, नागालैंड की क्रिएशन हो गई थी। मणिपुर तो उस टाइम पे था ही आपका यूनियन टेरिटरीज। हमने राजा बोधचंद्र सिंह जी का वो देखा ही था कि अगर उनको हम स्पेशल स्टेटस यूनियन टेरिटरी मणिपुर को नहीं बनाते तो मे बी मणिपुर एक सेपरेट कंट्री होता, तो दैट्स वाई उसको यूटी बनाया गया था, ठीक है। बट ये याद रखना, 1963 में नागालैंड को क्या किया गया था, एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था, एंड आफ्टर दैट 1966 में क्या हुआ था, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 आपके स्टेट्स बने, और चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी, इसकी क्रिएशन हुई थी,
ओके अब देखो, अब टाइम टू टाइम अब क्या हुआ, अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट इन 1972। बहुत बड़ा ईयर है 1972 आपका। स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1972 में। मेघालय को कार्व्ड आउट किया गया था, असम से मेघालय को कार्व्ड आउट किया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू emerged as separate states in the same year. The states of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being in 1987. Nagaland had become a state much earlier in 1963. I already told you. Now just look at this map of northeast. ठीक है, सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है इन स्टेट्स को। तो ये जो एरिया था आपका सबसे पहले, ठीक है, अगर आप 1956 का मैप देखते हो तो आप देखते हो ये एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है। त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पे, ये असम था, ठीक है, और ये आपका पूरा असम का एरिया है, ये मणिपुर का एरिया है, और ये पूरा असम का एरिया है। त्रिपुरा और मणिपुर दो ही यूनियन टेरिटरीज थी और असम एक स्टेट था। बट 1972 में क्या किया गया, मेघालय को कार्व्ड आउट किया गया। मेघालय कहाँ पे है आपका, मेघालय आपके यहाँ पे है, ठीक है, मेघालय को कार्व्ड आउट किया गया। फिर उसके बाद आपका मिजोरम को भी कार्व्ड आउट किया गया था, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर को क्या बना दिया गया था, मणिपुर स्टेट बन चुका था, और ये आपका कौन सा है, मिजोरम है। मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर को कार्व्ड आउट कर दिया गया, मेघालय को कार्व्ड आउट कर दिया गया, एंड मिजोरम को कार्व्ड आउट कर दिया गया था। कौन से स्टेट से, असम से इसको सेपरेट कर दिया गया और स्टेटहुड बन चुका था। नागालैंड ऑलरेडी हो ही चुका था, यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड है। आप अगर अभी मैप देखते हो तो ये देखो, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट्स जो हैं कार्व्ड आउट होके बन चुके थे। उस टाइम तक अरुणाचल प्रदेश नहीं बना था, 1972 में अरुणाचल प्रदेश तब तक नहीं आया था, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये रीऑर्गेनाइजेशन समझ आया कि कैसे फॉर्म हुआ था 1972 में। 1953 में आंध्र प्रदेश, 1956 में 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, 1960 में गुजरात की क्रिएशन हुई, महाराष्ट्र और गुजरात की। 1963 में नागालैंड क्रिएट हुआ था। 1966 में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट्स और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी जो है फॉर्म हुआ था। और 1972 में असम से कार्व्ड आउट कर दिया गया था मेघालय को, ठीक है, और त्रिपुरा और मणिपुर तो ऑलरेडी उस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज थे, तो उनको स्टेटहुड आपको दे दिया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपको कौन से ईयर में बना था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में बना था। कौन से ईयर में बना था, 1987 में मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेटहुड दे दी गई थी। Okay, so language did not, however, remain the sole basis of organization of states. In later years, sub-regions raised demands for separate states on the basis of a separate regional culture or complaints of regional imbalance of development. 3 such states, Chhattisgarh, Uttarakhand, and Jharkhand, were created in the year 2000. The story of reorganization has not come to an end. There are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states. These include Vidarbha in Maharashtra, Harit Pradesh in the western region of the Uttar Pradesh and the northern region of West Bengal. Now look at this. कि अब देखो क्रिएशन, अब हम बात करते हैं 2000 में। 2000 में क्या हुआ था, अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे, लुक एट द प्रेजेंट डे मैप। एक तो मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को कार्व्ड आउट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक तो 1956 का मैप देखो, ये आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। बट 2000 में क्या हुआ था, अब स्टेट्स जो थी खाली लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड नहीं कर रही थी स्टेट की क्रिएशन को। क्या डिमांड कर रही थी कि हमारे कल्चर के बेसिस पे, हमारे रीजनल हमारे डेवलपमेंट के बेसिस पे, कि हमारा रीजनल बैलेंस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, हमें डेवलप करना है। और इस बेसिस पे क्या है, छत्तीसगढ़ का क्रिएशन हुआ।
झारखंड का, बिहार से झारखंड का क्रिएशन हुआ, फॉर्मेशन हुई झारखंड की। झारखंड में इतना एग्रीकल्चर नहीं है, बोले कि हमें एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, माइनिंग पे ही बहुत राजी है, यहाँ पे माइनिंग सेक्टर बहुत ज्यादा है झारखंड में। तो झारखंड का फॉर्मेशन हुआ। और उत्तराखंड का, उत्तराखंड उस टाइम पे देखो अगर 1956 का मैप देखते हो, उत्तर प्रदेश का पार्ट था उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उत्तराखंड को भी क्या कर दिया गया था, एक सेपरेट स्टेट 2000 में फॉर्म कर दिया गया था, इन द ईयर 2000, फॉर देयर डेवलपमेंट्स, फॉर देयर ओन डेवलपमेंट्स। और आज की डेट तक भी क्या है कि ये डिमांड्स जो है अभी तक कम नहीं हुई है। जैसे महाराष्ट्र में जो विदर्भा एरिया है, वहां पे भी डिमांड मतलब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट दीजिए। वेस्टर्न रीजन, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे एक एरिया, यहाँ पे जो हरित प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश में डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की। इवन नॉर्थ, ये वाला जो एरिया है आपका वेस्ट बंगाल का, ये वाला जो एरिया है, ये लोग भी क्या डिमांड कर रहे हैं, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो अभी टिल 2000 हमने देख लिया कि कौन कौन से स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए। अभी रिसेंटली 2004 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना का जो एरिया है वो फॉर्म्ड हो गया, 2014 में फॉर्म्ड हुआ। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको क्या है, 2 यूनियन टेरिटरीज में फॉर्म कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज बन गए। और ऐसे करके आज की डेट में हमारे पास कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, बीच में तो जैसे मर्जिंग होती गई, ठीक है, और भी स्टेट्स जो है वो बनते गए। हिमाचल प्रदेश में पहले यूनियन टेरिटरीज था, फिर उसको क्या बना दिया गया था, स्टेट बना दिया गया था। तो ऐसे करते करते रीऑर्गेनाइज हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया है इंडिया का जो मैप है वो ऐसा ही रहेगा, इसमें और भी चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहेंगे, मे बी हो सकता है आते रहे, क्योंकि जिस जिस हिसाब से कुछ प्लेसेस जो डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि एक टाइमलाइन समझ लो आप। 1953 में आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज आए हमारे पास। 1960 में बॉम्बे स्प्लिट हुआ गुजरात और महाराष्ट्र में। 1963 में नागालैंड की फॉर्मेशन हुई। 1966 में पंजाब का सब डिविजन हुआ। कौन कौन से एरिया में क्या सब डिविजन हुआ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ एंड हरियाणा, इन ये 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में क्रिएट हुआ। 1971 में देखिए यूटी ऑफ हिमाचल, मैंने आपको बताया था ना पंजाब का सब डिविजन हुआ, हिमाचल प्रदेश को उस टाइम पे यूटी ही यूनियन टेरिटरी ही बनाया गया था, बट 1971 में बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है एक स्टेट, उसको एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को स्टेटहुड दे दी गई थी। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को भी क्या है, गोवा पहले एक यूनियन टेरिटरी था, गोवा को भी क्या कर दिया गया था, एक स्टेट बना दिया गया था। 2000 में कल्चरल बेसिस पे और डेवलपमेंटल बेसिस पे जो डिमांड्स हुई थी उसके बेसिस पे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को स्टेटहुड अलग सेपरेट स्टेटहुडशिप दे दी गई थी। 2014 में तेलंगाना और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को क्या है, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। और इन दोनों जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, हमारा स्टेट था। So this is all about this chapter class. Go through it, and if you face any problem do let me know. Okay, read the chapter very carefully. ये जो डेट्स हैं, ठीक है, अच्छे से डेट्स नहीं बट ये टाइमलाइन पता होना चाहिए बेसिकली कि कैसे फॉर्म हुआ, कैसे कैसे रीऑर्गेनाइज होते गए, ठीक है, स्टेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है. So go through it, and if you face any problem do let me know. This is all about today. Thank you so much. Keep learning, happy learning, take care of yourself. Bye bye.